Shri P.M. Raut sir, Honorable Secretary of the institution, Professor Dr. Vinay Raut sir, Honorable Principal Dr. R.K. Patra sir, both the Vice Principals, Speaker Madam, Mrs. Manisha Salvi Madam, all my colleagues who are present here for this webinar, and my dear students, as well as Kulkarni sir, who is handling the sole responsibility of technical assistance here. Welcome all of you. To introduce all of you to our institution, Vidya Vikas Education Society Vikhroli was founded in 1963 with an objective of catering to the educational needs of the underprivileged strata of society. Started in one room at Pantanagar, Ghatkopar with an objective of providing need-based education. Our institution then went on progressing into a huge tree of knowledge, fulfilling the educational needs of society from KG to PG. Founded by the visionary philanthropist, Honorable late Dr. V.S. Matkar, late Dr. Datta Samant, and Honorable Shri P.M. Raut sir, who is a visionary academician as well as the recipient of National Award for Teachers. This institution imparts education through its branches spread across Mumbai, Thane, and Sindhudurga district. And to talk about our college, Vikas College of Arts, Science and Commerce, founded by the Institute in 1984, caters to the higher educational needs of underprivileged sections of society in the pockets of suburbs of Mumbai from Ghatkopar to Mulund. Our college today offers more than 20 undergraduate and PG courses, that is postgraduate courses, and is also a PhD center. The Women Development Cell of the college has been actively functioning as per the guidelines laid down by the UGC, University Grants Commission, and University of Mumbai from time to time. Along with a strong support protection offered to the girl students against any harassment based on gender, we also aim at the empowerment of women through various sessions and programs which we organize for our girl students here in the college. Now, to talk about today's webinar, my dear students, it's a part of these activities only. Virtual reality has become a common feature of our daily life today, especially during pandemic, as we have no option of getting together physically. All of us assemble online for all of our work, right from teaching, learning, and whatever other works like this meeting. Apart from this, social media and electronic communication has been an unavoidable reality of our times. But the question is, are we safe while communicating online? And this is what is going to be the topic of today's webinar. Let me welcome Mrs. Manisha Salvi Madam, who represents Ahan Foundation and Responsible Netism, which is an NGO very active in the field of cyber security. Manisha Madam herself is an electronics engineer by profession and has an experience in IT corporate sector of around 11 years. Currently, she is an active facilitator and trainer for Responsible Netism and is very much proactive in terms of creating awareness regarding children's safety online. Welcome you to the virtual platform, Madam, and on behalf of our management, principal, and Vikas College and WDC committee, I welcome you to this virtual platform. And I also welcome our Vice Principal Mule sir, who has been behind
us as a great support for the success of this program. Welcome, sir. And I also welcome all of you to the webinar. And now, without wasting much of our time, I hand over the session to Mrs. Manisha Madam. Manisha Madam, please take over. Thank you. Thank you so much, Shubhada Madam, for this warm welcome. I once again welcome all the students and the college authorities of Vikas College for this session on Cyber Sakhi. Just give me one moment. I'm sharing my presentation. All right. So I'm sharing my presentation. I hope everyone is able to view it clearly. I would request all the participants to keep their audios as well as videos off throughout the session. My name is Manisha and I'm from Ahan Foundation. We are working for the last 8 to 10 years on child online safety and protection, along with Maharashtra Police and the Ministry of Education. One second. Just give me 1 minute. Okay. We are also a referral organization which helps in referring cybercrime cases to the police and can provide psychological support and guidance to anyone who is in need of it. Today's session is specifically for college girls because after children, we feel that women and mostly young girls are more vulnerable to cybercrime cases. So let us start our session on today's topic, that is cyber safety for women. What you can see on my screen right now is not at all a new thing to anyone, right? So, be it Facebook, be it WhatsApp, be it any banking application or games, shopping portals, I'm sure every one of you uses it. ये हमारी इंटरनेट की दुनिया है जो सुबह से लेके शाम तक हम इस पे ही रहते हैं. सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज से जो चालू होता है वो गुड नाइट मैसेज तक ही जाके खत्म होता है. I think somebody's mic is not muted. Okay. So, madam, am I not able to share my video? Will it remain off throughout the session till I'm sharing? You are not. Just let me check. Okay, I don't We mind. can see the screen. That way. Screen is visible, madam. Okay, so I think video sharing will only be possible when we are not sharing the screen. That's what message I'm getting. So no, it is not so. It is not so. Because it is telling me you can share your video when you're done screen sharing. Hello, you can start your video also. It's not allowing me actually. So that option is not available to start my video. And it is giving me a message saying you can share your video when you're done with the screen sharing. So I don't mind because she is doing it from the phone. I don't think so, madam, because the screen I'm sharing from laptop and my video is also from the laptop only. I'm using the laptop camera. Okay. So it is okay, madam. Even if it is off, I don't mind. But I just thought that maybe there is some. If it is on, it might be a better experience because you'll be able to see what I'm, how I'm talking about things. Never mind. I think let the video be off. Anyways, you're able to see my screen sharing. So let me continue. Yes, ma'am. So just a second. Sorry to disturb you. I welcome our Vice Principal Matthew sir to this webinar. Welcome, sir, as you are there. Even Thank you very sir much. is also there. Vinay sir is also attending. I didn't see. Okay. Just a second. I welcome our
Secretary of the institution, parent institution Vidya Vikas Education Society, as well as the head of the Department of Political Science, Honorable Dr. Vinay Raut, sir, to this webinar on Cyber Sakhi. Welcome you, sir, to this webinar. Madam, you can continue now. Thank you. Yes. And sorry Yes, for thank you, the madam. interruption. No problem, madam. That's absolutely okay. Yes. So I was talking about this internet world on which we are there, every one of us, be it children, be it elders, be it teenagers, हम सभी इस दुनिया में सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेज से लेके गुड नाइट मैसेज तक पड़े रहते हैं, राइट? तरह तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, गेम्स, बैंकिंग, शॉपिंग, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं. तो मैं ये बताने यहाँ पे नहीं आई हूँ कि ये सब चीजें गलत है, you don't have to use it. This is not my motive. It is absolutely the internet is absolutely a boon. It's a knowledge bank which is available to us, and we have to definitely use it for the ages to come. But while using it, there can be certain things which might go wrong and we may fall into trouble. कुछ ऐसी चीजें हो सकती है वो जो जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं हो कि हम ये क्राइम कर बैठे. Just one small note. I have pasted the feedback form link. I just want to tell all the students that chat में मैंने एक feedback form की link paste की है. So throughout the session or maybe at the end of the session, you can fill that link. At the end I may forget to tell you, so I just thought of telling you right now. तो ये जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, as I said, that certain things can go wrong and we may not be even aware that it is a cyber crime. तो अगर हमें ये चीजें पता चले तो we will be able to deal with it better. And I'm sure of all the girls who are attending this session today, आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस किया होगा. All the crimes that we will talk about today are very much यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आज हो रही है. And everyone faces something or the other every day, or at least once in a month. So let us see what all these cyber crimes are. इंटरनेट का माध्यम इस्तेमाल करके जब कोई क्राइम किया जाता है उसे साइबर क्राइम बोलते हैं. Let us see what all these crimes are. First, we are going to talk about fake profiles. Fake profile means using another person's identity and creating a profile on their name without their consent and misusing it. तो बहुत से बार दूसरों की प्रोफाइल बनाई जाती है उसे परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए. अब मेरा आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, that can be only on my name, right? No one else can create a PAN card on my name. If somebody does that, it will be illegal. So in the same way, if someone is trying to create a profile on my name using my identity, it is called a fake profile and it is a cyber crime. As I said, we work with the Maharashtra police day in and day out. We see so many cases happening and we are aware of those. So I'm also going to discuss today about all those cases that we confront. तो ऐसे ही एक केस हुआ था. एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का था. किसी बात पे से उसकी टीचर ने उसे एक दिन डांट दिया और उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसकी टीचर को जाके कुछ ऐसी चीज करेगा जिससे टीचर को परेशानी हो. तो उस लड़के ने जाके टीचर का एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया और उस फेक प्रोफाइल पे बहुत सारे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए. अब जब बाकी बच्चों को ये चीज पता चली तो बच्चों ने भी उस पे बहुत सारे कमेंट्स डाले एंड Hello. Hello, madam. I think you are muted. Yes. I think I was muted. So Yes. I think all the participants जब भी directly mute हो जाते हैं, I think you must be muting all the participants on one go. तभी मेरा mute हो गया होगा. Yeah. So did you get to hear what case I was discussing, madam?
You had just started, madam. Okay. So I was discussing this case on fake profiles, जहाँ पे एक लड़के ने जाके उसकी टीचर का फेक प्रोफाइल बना दिया क्योंकि उस टीचर ने उसे क्लास में डांट दिया था एंड द बॉय वांटेड टू ट्रबल दैट, सो ही मेड अ फेक प्रोफाइल एंड बहुत सारे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए। तो बच्चों को जब ये बाकी बच्चों को पता चला, उन्होंने भी उस पे बहुत सारे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए एंड एवरीवन स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इट। बच्चे ने कि कहीं से टीचर का एक फोटो ले लिया, जो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, राइट? कि आज हम लोग बहुत सारे फोटोज डीपी पे, स्टेटस पे कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं, प्रोफाइल में, अलग अलग पोस्ट्स में, वी कीप ऑन अपलोडिंग द फोटोज। तो हमारी फोटो कोई भी ले सकता है, एनीवन कैन मिसयूज इट। इसी तरह से उस टीचर की भी कहीं पे फोटो रही होगी, तो वो फोटोज बच्चे ने ली एंड ही ट्राइड टू and he morphed that photo and created a new photo which was an obscene photo, एक अश्लील फोटो थी। वो फोटो भी उसने फेक प्रोफाइल पे डाल दी और फिर और बच्चों ने जाके उसका और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। टीचर को जब ये बात पता चली तब टीचर इतना ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि कोई भी टीचर इसलिए बच्चों को नहीं डांटते हैं बिकॉज दे वांट समथिंग रॉन्ग टू हैपन विद द चाइल्ड, बट उस बच्चे ने ऐसे काम किया दैट द टीचर वाज सो एम्बैरेस्ड एंड दैट इज द रीजन शी वाज सो शॉक्ड आल्सो कि किसी ने जाके उनके साथ ऐसे बिहेव किया है। उन्होंने जाके कंप्लेंट लॉन्च की पुलिस ने एंड व्हेन द पुलिस फाउंड आउट दैट इट वाज द चाइल्ड ऑफ हर ओन क्लास, शी वाज वेरी एंग्री विद द चाइल्ड। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया एंड देन टीचर डिडंट वांट कि उसका उस बच्चे का करियर खराब हो, इसलिए उस टीचर ने उसे शी टुक बैक द कंप्लेंट, शी डिड नॉट लेट इट गो अहेड। तो बहुत से बार ऐसे होता है ना कि जाने अनजाने में या मजाक में हम कुछ चीजें कर लेते हैं जिससे दूसरों को दिक्कत होती है। इस तरह से किसी का भी फेक प्रोफाइल बनाना ये साइबर क्राइम है। और जब बच्चे क्राइम करते हैं तब मोस्टली जब आप माइनर रहते हो, तो सिंस यू आर माइनर द कंप्लेंट विल बी लॉन्च्ड ऑन योर पेरेंट्स नेम एंड ऑल्सो इन इंडिया वी डू नॉट हैव अ सेपरेट लॉ विच इज फॉर माइनर्स एंड मेजर्स। तो आपको भी उसमें इक्वली सजा हो सकती है। You will be sent to a juvenile court, you will be sent to reprimand, and your parents might have to be in jail. और आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर 24 घंटे भी अगर किसी को जेल में रखा गया तो भी उनकी जॉब भी जा सकती है। तो आप जो कुछ भी बातें करते हो उससे आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ हो सकती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये चीजों में अलर्ट रहना है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग व्हिच माइट बी हर्टफुल टू द अदर्स, व्हिच माइट डिफेम द अदर पर्सन, और इस तरह से फेक प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं करना है सिंस इट इज अ साइबर क्राइम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैकिंग। Hacking means stealing other person's data without their knowledge. So be it images, videos, or anyone's password as well. तो इस तरह से किसी का डेटा चोरी करना, उसका अकाउंट हैक करना, ये आजकल बच्चों में ना बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इवन इन कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन और इवन इन स्कूल, कि जिसको हैकिंग आता है, जिसको पासवर्ड क्रैक करना आता है, उसे एक बच्चों में ही उसको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स दैट चाइल्ड और उसको बहुत उसकी तारीफ होती है। बट लेट मी टेल यू एवरीवन कि इसमें रिस्पेक्ट या बहुत बड़ा काम किया ऐसी कोई चीज नहीं है, बिकॉज दिस इज एन एब्सोल्युटली केस ऑफ साइबर क्राइम। कभी भी आप दूसरों के अकाउंट्स पे अगर इस तरह से एनक्रोच करते हो, अगर आप किसी के भी अकाउंट को हैक करते हो, तो वो साइबर क्राइम माना जाता है। एक तो आप दूसरों की परमिशन के बगैर, इट्स लाइक ब्रेकिंग इनटू देयर अकाउंट, एंड सेकेंडली यू विल बी यूजिंग देयर डेटा विदाउट देयर परमिशन। सो दिस इज अ वेरी सीरियस साइबर क्राइम। अगर आपको हैकिंग में इतना ही इंटरेस्ट है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू that some people there is a profession which is an ethical hacking profession. तो ethical hacker आप बन सकते हो, वो भी आपको ग्रेजुएशन के बाद में ही बन सकते हो। there are coding classes which you will need to take and they are government certified coding classes. So ये इस तरह से आप हैकिंग सीखने के बाद में you can get a job as an ethical hacker, which is a highly respectable and a highly paid job. But that job is specifically to work for the government, and these ethical hackers, they work to strengthen the system.
बाकी किसी भी तरह का हैकिंग रहता है ना, अकाउंट हैक करना, पासवर्ड हैक करना, दैट इज एब्सोल्युटली अ नॉन एथिकल थिंग एंड इट इज अ साइबर क्राइम. Next, we are going to talk about stalking. Stalking means following another person on internet with bad intentions. वैसे तो हम लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, राइट? वी फॉलो सेलिब्रिटीज, वी फॉलो आवर फ्रेंड्स, उनके पोस्ट को लाइक करेंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं. बट दैट इज नॉट कॉल्ड stalking. Stalking means when you are following another person with a wrong intention. तो बहुत सारी लड़कियों के साथ ये चीजें होती है. जब भी वो इंटरनेट पे रहती है, बहुत सारे लोग उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड थ्रू वेरियस मीडियम्स दे ट्राई कॉन्टैक्टिंग देम. और बहुत सारे बार उनको फॉलो किया जाता है. आप कुछ भी पोस्ट डालोगे उस पे लोग कमेंट करेंगे and they really try to trouble you. So this is a case of stalking, and you must know that you can report these cases of stalking on the social media sites on which you are being followed. तो ये मैकेनिज्म्स हमें पता होने चाहिए. और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, इवन लड़कों के साथ भी ऐसे होता है. तो लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती है. लड़कियों को जैसे फॉलो किया जाता है, वैसे सम गर्ल्स बिहेव इन द सेम वे विद द बॉयज एज वेल. हमारे पास एक केस आया था जहां पे एक लड़की थी 12th स्टैंडर्ड की और लड़का था 11th स्टैंडर्ड का, और उस लड़की को वो लड़का बहुत पसंद था. So she told him about it, but that boy did not have any interest in that girl. So उसने that girl, the boy told her that I'm not interested, you don't talk to me. So this girl started following him on internet. तो वो कहीं पे भी जाता था, कुछ पोस्ट डालता था, तो she used to comment on that, and her comments used to be very intense. This boy stopped responding her on internet as well. तो उसको इतना गुस्सा आ गया, and she, all her posts and everything became so intense that one day she just posted a photo on the internet जहाँ पे एक हाथ कटा हुआ ऐसे फोटो दिखाया था. सॉरी, उसने इंटरनेट पे नहीं पोस्ट किया, बट शी डाउनलोडेड दैट फ्रॉम इंटरनेट एंड शी सेंट इट टू दैट बॉय. और उसको बताया कि अगर तूने अभी मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं ऐसा फोटो इंटरनेट पे डाल के सुसाइड कर लूंगी और तेरा नाम लिख दूंगी वहां पे कि इसकी वजह से मैंने सुसाइड कर लिया. So this boy got so scared that he himself tried to commit suicide. तो आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटी सी बात या एक छोटी सी चाह जो आपकी होती है, या आप किसी को परेशान करोगे इंटरनेट पे, तो वो उसकी जान पे भी बना सकती है. Now luckily that boy got saved, but that girl, his parents asked him कि क्या हुआ, ऐसे क्यों किया, and he revealed कि इस लड़की ने मुझे इस तरह से परेशान किया था. So उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको फाइन भरना पड़ा, they had to go to jail, and this girl was rusticated from the college. She was not allowed to join the college again. So these repercussions of anything doing wrong on the internet can be so severe as well. So these kind of cases are called as stalking. Morphing is when you take someone's photo and you merge with another photo and create a third photo. Many a times दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए कोई अश्लील फोटोज क्रिएट होते हैं. तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनकी सहायता से आप ये इजीली कर सकते हो. पर इस तरह से किसी का भी फोटो लेना, उसके परमिशन के बिना उसको चेंज करना या कोई अश्लील फोटो क्रिएट करना इज अ साइबर क्राइम. साइबर बुलिंग मीन्स रैगिंग. बुलिंग का मतलब है रैगिंग. When it is done using internet, it is called as cyberbullying. It happens in many colleges, many schools as well, कि बच्चे ही बच्चों को तकलीफ देते हैं इंटरनेट के माध्यम से. So it's not just that in the schools ragging होता है, लेकिन इंटरनेट पे भी ऐसे होता है. तो इस तरह का बर्ताव अगर आपके साथ कोई कर रहा है, if someone is trying to shame you on your body parts, अगर कोई कमेंट्स डाल रहा है, आपकी फेक प्रोफाइल बनाई है, या किसी भी चीजों की सहायता से अगर वो इंटरनेट में आपको परेशान कर रहा है, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं. एंड दिस इज डेफिनेटली अ साइबर क्राइम जो रिपोर्ट करना चाहिए, so that you can get out of it. So I'm also going to tell you how we can do that in the next slide. ट्रोलिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा. तो एक कोई टॉपिक पे किसी एक बंदे को टारगेट करके यू जस्ट कीप ऑन कमेंटिंग ऑन दैट पर्सन, बहुत मजाक उड़ाते हैं या बहुत हार्श
चीजें उसे बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोलिंग, बट इट इज नॉट एन एथिकल थिंग टू डू, इट इज अ साइबर क्राइम। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, राइट? सो आई एम श्योर कि अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे तो एवरी 2-3 days यू गेट टू रीड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड्स दैट आर हैपनिंग। कोई तो एसएमएस आता है, कोई ईमेल आता है जिसमें आपको लिखा होता है कि आपको लॉटरी लगी है, and then you need to provide your account details so that you can get the money of the lottery. But then eventually what happens, जब आप account details share करते हो तो आपके account में पैसे आने के बजाय पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। कई बार आपको फोन्स आते हैं कि आप कुछ ओटीपी शेयर कीजिए, और वो ओटीपी शेयर करने के बाद में यू रियलाइज दैट देयर हैज बीन सम फाइनेंशियल फ्रॉड दैट हैज हैपेंड। तो इस तरह से किसी भी अनजान सोर्स से अगर आपको मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। यू मस्ट ऑलवेज वेरीफाई द सोर्स। और ऐसे कोई फ्री में पैसे बांटने बैठा नहीं है, राइट? कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल सकता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपके अकाउंट में एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है। ऐसे फ्री में अगर लोग पैसे बांटने लगे तो क्या मजा आएगा, राइट? पर ऐसे होता नहीं है। इट माइट बी डेफिनेटली अ केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपको ऐसे कुछ भी मेल्स या एसएमएस आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट क्लिक ऑन दैट। साइबर टेररिज्म इज अनदर वेरी बिग साइबर क्राइम। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एक्टिव है जो बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मे बी दे गिव देम सम एडवेंचरस एक्टिविटीज और दे गिव देम सम डेयर्स और चैलेंजेस। तो बच्चों को भी लगता है कि अरे वाह, कुछ चैलेंजिंग चीज है, करने में मजा आएगा। एंड यू नो, यू ऑलवेज लव टू डू एडवेंचरस थिंग्स। लेकिन आपको देखना है कि ये क्या ग्रुप्स है, कौन लोग हैं जो आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देर आर सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल who are trying to get children on their accounts, and they are trying to take advantage of them. They instigate the children to go against their society, go against their country, and do all wrong things. So cyber terrorism is another very big crime. Whatever crimes that I'm going to talk about today, you know, all these crimes are punishable. Under IT Act, they are punishable. They have a specific imprisonment associated with it, fine associated होता है। और ऐसे नहीं है कि आप छोटे हो तो आपको कोई सजा नहीं होगी। क्राइम तो आखिर क्राइम है, राइट? किसी को कुछ परेशानी पहुंचाएंगे आप तो आपको सजा तो होनी ही है। एंड एज आई सेड कि आप बहुत से बार आपके पेरेंट्स को वो भुगतनी पड़ती है, because आपके devices, आपके SIM cards, everything is registered on your parents' name when you're minor. So many a times, even parents are subject to these kind of crimes. We'll also talk about that IT Act later on, and I will tell you कि हर एक crime जो है उससे क्या punishment associated है. We are also going to talk about that. टॉकिंग अबाउट साइबर बुलिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी आपको परेशान कर रहा है, इफ समवन इज रियली हैरेसिंग यू ऑन द इंटरनेट, एक बात समझ लीजिए दैट यू डू नॉट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड। डरना नहीं है। अगर आप डरोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। दे विल कीप ऑन ट्रबलिंग यू मोर। आप गुस्सा हो जाओ, आप डरो, आप रोवो, इसके लिए वो आपको तंग कर रहे हैं। सो इफ यू रिएक्ट इन दैट वे, then their intention will be fulfilled, right? So you do not have to react or respond to any kind of ragging which is done on the internet. And do not delete the evidences immediately. यानी किसी ने आप पे अगर कुछ कमेंट किया है, कुछ आपकी फोटो गंदी बना के डाल दी है, तो इसको ना प्लीज इमीडिएटली डिलीट मत कीजिए। इसका कारण ये है कि अगर आपने इसको डिलीट किया तो आप उसका एविडेंस मिटा रहे हो। सो फर्स्ट आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, उसके फोटोग्राफ्स लेने हैं, और उसके बाद में ही आप उसको डिलीट कर दीजिए। टुमारो इफ यू नीड टू गो टू द पुलिस, यू विल ऑलवेज हैव दी स्क्रीनशॉट्स विथ यू एंड यू कैन लॉज योर कंप्लेंट। Report this incident to a trusted adult, maybe a parent या teachers या principal या कोई भी स्कूल के authorities जो है, उनको आप जाके ये इंसिडेंट रिपोर्ट कीजिए। आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो वो शायद आपको इतनी मदद नहीं कर सकते हैं जितने कोई अडल्ट व्यक्ति करेंगे, क्योंकि वो भी आपके ही एज के रहते हैं, राइट? बता के क्या सोल्यूशन बताएंगे वो आपको। सो हमेशा किसी बड़े व्यक्ति को जाके ये चीज बताइए
make use of the social media sites for reporting this abuse. Every social media site has a policy, and अगर आपको वहां पे कोई परेशान कर रहा है तो you can definitely report it on the same social media site. I hope you all girls know that if someone is sending you a friend request more than 3 times, यानी आपको कोई फोर्स कर रहा है फ्रेंडशिप करने के लिए, तो आप फेसबुक पे उसको रिपोर्टिंग कर सकते हो. So these features, we should be always aware of these features, and you completely cut the communication with the bully. तो जो आपको परेशान कर रहा है उसको अगर आप 4 बातें बोलोगे, वो 4 बातें वहां से बोलेगा और ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा. तो आपको कंप्लीटली ये जो कम्युनिकेशन है ना उसके साथ में, कुछ भी हो आपको पूरा बंद कर देना है, उसे ब्लॉक कर देना है. और ये सब होने के बाद में भी, ये सब करने के बाद में भी अगर वो आपको परेशान करते रह रहा है, अगर आपको धमकियां दे रहा है, तो प्लीज किसी अडल्ट को आपके साथ ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके इसका रिपोर्टिंग कीजिए. आप जो एविडेंसेस आपने निकाले हैं वो भी उन्हें दिखाइए. You will always get help because all the police stations have cyber cells are associated with them, and these cyber cells can find out all these cyber crime cases. किसी को ऐसे लगता होगा कि अरे वो तो हम लोग तो घर में बैठ के अपने फोन पे कुछ करते हैं, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि मैंने क्या क्राइम किया है, राइट? हमें ऐसे लगता है कि हम बंद कमरे में बैठ के कुछ भी कर लेंगे, बट दैट इज नॉट द केस. Using your device IDs and using the IP address of your internet connection, anyone can, the police can find out कि आपने कहाँ पे बैठ के क्या क्राइम किया है. तो आपको कभी भी चुप नहीं बैठना है. पहली तो बात है कि आपको किसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना है, किसी को रैग नहीं करना है इंटरनेट पे. एंड अगर आपके साथ ऐसे कोई कर रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी है. एंड जस्ट कीप इन माइंड कि किसी को भी अधिकार नहीं होता है कि वो आपको कुछ भी, किसी भी तरह की परेशानी पहुंचाए, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, चाहे वो फिजिकल परेशानी हो. नो वन हैज द राइट टू डू दैट. सो प्लीज रेज योर वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस. गेमिंग की बात करें तो सब लोग गेम्स खेलते हैं, राइट? एकदम छोटे से लेके बड़ों को गेम्स खेलना पसंद है. बट खास करके मैं इसमें एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगी. पहले तो हाउ मच इज द स्क्रीन टाइम दैट यू आर यूजिंग, because the more the amount of time that you spend on the screen, it will have adverse effects on your body. It will have adverse effects on your eyes, on your brain, or especially when you're playing. You all know that certain games are very addictive, they are very violent, और आपके दिमाग में भी वो बहुत ज्यादा असर करते हैं कि कई कई बार ऐसे लगता है कि जो गेम में वायलेंस है वो आपके सामने हो रहा है. ऑनलाइन गेम्स में भी ऐसे होता है कि आप एक जगह से कनेक्ट करते हो, कहीं और से कोई दूसरा कनेक्ट कर रहा है, और ऐसे करते करते आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है. बट देन दिस पर्सन इज अ स्ट्रेंजर, यू डोंट नो कि वो कहाँ से है, क्या है, और उसके मन में क्या है. ऐसे बहुत सारे केसेस हुई हैं जहां बच्चे गेम्स के माध्यम से किसी स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है, एंड पीपल हैव ट्राइड टू किडनैप चिल्ड्रन. कहीं पे मिलने के लिए बुलाते हैं एंड दे गेट किडनैप्ड. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है. हम बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी गेट कंप्लीटली एडिक्टेड टू इट. आज ऐसे सिनेरियो है कि हमें घर पे बैठ के इंटरनेट के माध्यम से किसी के साथ चैट करना ज्यादा पसंद है. वी डोंट लाइक टू कॉन्फ्रंट ईच अदर. किसी सोशल गैदरिंग में जाओ तो भी आप देखोगे कि हर एक जन अपने मोबाइल पे रहता है, क्योंकि मोबाइल पे किसी को हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू ईटन योर फूड, ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन सामने सामने किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. So many of you might be having the habit of continuously posting your photos and your details on the internet. It is a self obsession. Even in my circle, even in my contact list, there are some people who continuously change their DPs. Like every day the DP changes, and every day there is like at least 4 updates on the status. और अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ तो यानी अगर बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अच्छी बात हुई उसका स्टेटस आएगा, झगड़ा हुआ तो पहले स्टेटस आएगा, डीपी चेंज हो जाएगा. सो यू आर गिविंग एवरीवन एन एक्सेस इनटू योर लाइफ, पर आपको खुद से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है.
एंड दिस थिंग हैपेंस, और आपको ये कंटिन्यूसली ये चीजें करके देयर हैज बीन अ सिनेरियो टुडे दैट इवन इन होम्स एवरीवन इज ऑन देयर गैजेट. एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं. बहुत से बार एक रूम में से दूसरे रूम में भी हम मैसेज भेज के बुला लेते हैं लोगों को. You must have experienced these things at your home as well. So all of these things sum up in creating lot of anxiety disorders. बहुत restless लगता है. You will not know why you're feeling restless, and all this comes from too much of use of social media. सेल्फीज लेना हम सबको पसंद है, राइट? बट वाइल टेकिंग सेल्फीज डू वी थिंक कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों, कहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं? और जैसे मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में कहा, वैसे भी सेल्फीज के बारे में अगर बोला जाए तो एवरी 2 days यू विल हियर ऑफ केसेस वेर इन पीपल हैव डाइड टेकिंग सेल्फीज. ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है राइट में, वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है. कुछ साल पहले ये घटना हुई थी. ये कुछ कॉलेज और स्कूल के मिक्स ऐसा एक बच्चों का ग्रुप था. दे वेंट टू ट्रैक ऑन अ माउंटेन, और ट्रैकिंग खत्म होने के बाद में उनको एकदम एज पे बैठ के सेल्फी लेनी थी. तो सबने एक दूसरे के हाथ टाइटली पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हो वो फोटो में. और जैसे ही सेल्फी लेके हो गया, उन्होंने सेल्फी स्टिक साइड में रखी, और जब वो उठ रहे थे तब एक बच्चे का पैर फिसल गया. और क्योंकि सबने हाथ एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पकड़े हुए थे, वो सब लोग उस लड़के के साथ गिर के खाई में मर गए. सो वी नीड टू थिंक कि हम लोग क्या कर रहे हैं. एक ये 500 लाइक्स के लिए maybe we are putting our lives in danger. We cannot afford to lose our lives just because someone has to like us on social media. Today we have stopped thinking कि actually क्या जरूरी है लाइफ में. What is the real life picture and what is the virtual life that we are looking at. बहुत से बार ऐसे होता है कि लड़कियां भी या लड़के भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया एप्स पे बहुत भारी भारी एकदम फोटोज डालते हैं. A boy might be just showing that he is a very big hunk, he likes sports and he likes music and dancing, but in real life he may not be like that. He may be just a person who does not like to exercise, सिर्फ बैठ के खाना पसंद है. तो आपको ये जानना जरूरी है कि what is the difference between this real life and real life. And it is very important to understand this difference at this stage, because जो real life में आपके साथ connect कर सकते हैं, या आपके आजू बाजू में लोग जो है real life में, if you observe them, you will realize कि वो सब simple ही होते हैं. We cannot afford to put a lot of makeup and wear stylish clothes each and every moment of our lives. If you observe your parents, if you observe your teachers, you will realize that everyone is not very beautiful or very handsome, right? But we still like our parents, we still like our teachers, because they have some good qualities in them. They take our हमारी परवाह करते हैं. They take care of us, they earn money for us, they are giving us a good education, and that is the reason we love and respect them. So this difference between the real life and the virtual life is what we need to understand today. मेमेज सबको पसंद है, राइट? बहुत मजा आता है मेमेज देखते वक्त, लेकिन जब तक वो दूसरे पे होंगे तभी हमें पसंद है. अगर कल को आपके ऊपर कोई मेमे बनाने लगे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. यू विल गेट वेरी एंग्री ऑन देम. So how can you afford to make memes on teachers, on the school, or on anyone else? It is absolutely a non-acceptable thing to create such kind of defamatory memes. क्योंकि ये memes हमेशा सामने वाले का मजाक उड़ाने के लिए ही बनाए जाते हैं. But it is a crime, उसे बनाना नहीं चाहिए. Even the hashtags आप जो use करते हो, I would strongly urge you to go and observe and go and understand what are the hashtags that you are using. बहुत से बार हम randomly कुछ भी hashtags use करते हैं. So अगर मैंने पेंटिंग किया है कोई तो, and if I want to upload that photo on internet, on say Instagram, तो क्या hashtag use करेंगे हम? I should use something like hashtag for art or hashtag love for painting, something like this, right? But if I'm using some hashtag which says hashtag world, so that is absolutely irrelevant. ये करने से होता क्या है कि आप दूसरे को एक्सेस दे देते हो अपने प्रोफाइल में. उस हैशटैग में जितने लोगों ने पोस्ट किया है, all of them can see your post,
and then they can come to your profile, they can read your profile and understand how you are, and then they get access to interacting with you. So make sure that you understand what are the hashtags that you are using. Just give me 1 minute. So talking about now these very important topics about डेटिंग एप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मीडियम्स में से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपको पता भी नहीं होता है कि कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. आई एम श्योर यू गर्ल्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस कि कोई भी अचानक से किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एंड यू डोंट रियली नो हु इज देयर ऑन द अदर साइड. फोटो भी कुछ अजीब रहती है, यू कैन नॉट गेस. सो ऐसी रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए. कभी ऐसे भी होता है कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड है एंड देन यू फील कि हाँ ये तो कनेक्टेड है, हमें इन्हें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए. बट इससे होता क्या है कि यू आर गिविंग योर एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ स्ट्रेंजर, and this person can actually do lot of bad things with you. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडशिप करने के बाद में कुछ ऐसी मांगे की गई है which are not right. ऑब्सीन फोटोज, अश्लील इमेजेस, अश्लील वीडियोस की मांग की है और लड़कियां भी वो शेयर कर रही है. देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर हैपनिंग. तो आजकल का तो जमाना ही ऐसे है, राइट? आज मिले कल फ्रेंडशिप हो गई, परसों प्यार हो गया और उसके नेक्स्ट डे ऐसी कुछ मांग हो जाती है कि आपको भी लगता है कि अरे मैंने ऐसा फोटो अगर शेयर नहीं किया, मेरी न्यूड फोटोग्राफ अगर मैंने शेयर नहीं की तो शायद मेरा जो बेबी जानू सोनू है वो तो मर जाएगा. बट बिलीव मी गर्ल्स, ऐसे कोई मरने नहीं वाला है अगर उसको आपकी फोटो नहीं मिलती है तो, या आपको कुछ भी वो करने बोले, स्ट्रिप करने बोले ऑनलाइन, तो आपने नहीं किया तो वो वहां पे मरने नहीं वाला है. हाँ, लेकिन अगर आपने किया और उसको आपके न्यूड फोटो की एक्सेस मिली, इफ ही रिकॉर्ड्स यू, तो आपको तो जरूर दिक्कत होगी और मरने जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है. दैट यू माइट रियली गेट ट्रैप्ड इनटू रॉन्ग थिंग्स. आजकल तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि डेटिंग एप्स में भी देयर आर सो मेनी पीपल हु गेट कनेक्टेड एंड देन दे आस्क यू फॉर ऑब्सीन पिक्चर्स, ऑब्सीन वीडियोस. और बहुत सारे बच्चे, लड़के भी और लड़कियां भी, आज खुद ही अपने ऐसे फोटोज, अश्लील वीडियोस निकाल के दे आर पुटिंग इट ऑन द इंटरनेट और दे आर सेलिंग इट फॉर फ्यू अमाउंट ऑफ मनी. सो विच इज एब्सोल्युटली वेरी डेंजरस. कल को आपका भी ऐसे आपके साथ भी हो सकता है. ऑनलाइन ग्रूमिंग, जहाँ पे स्ट्रेंजर्स आपके साथ कनेक्ट होके इस तरह से आपको ग्रूम करते हैं कि आप कुछ भी उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हो. तो ऐसे ही एक केस हुआ था very recently, that is just 2 months back. There was a girl of 9th standard and she used to attend classes from home. Online classes attend करती थी. उसके parents घर पे नहीं रहते थे. They used to go to job and she used to be there with her grandparents. तो एक दिन जब दादी ने बेडरूम का दरवाजा अचानक से खोल दिया, she saw that this girl was sitting in front of her computer. The camera was on and this girl was not wearing anything. बिना कुछ कपड़े पहने बैठी हुई थी. दादी को तो ये देख के चक्कर ही आ गए. फिर जब उस लड़की को सब कुछ पूछा गया, पेरेंट्स को रिपोर्टिंग किया गया, तब पता चला कि कोई तो अंकल थे जिन्होंने इसके साथ फ्रेंडशिप की थी और वो जो भी कहते थे वो ये लड़की कैमरा के सामने करने के लिए तैयार हो जाती थी. तो आज उन्होंने बोल दिया कि चलो मुझ कैमरा के सामने आओ, मुझे किस दे दो. कल बोलेंगे कि आपका शर्ट उतार दो, आपकी पैंट उतार दो. एंड दिस गर्ल वाज डूइंग दीज थिंग्स. So such kind of things will definitely land you in trouble. People can blackmail you. आपसे कुछ भी गलत चीजें करवा सकते हैं. So make sure that you do not connect with strangers and do not fall prey to anything that they ask for. Porn websites भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, right? We already know that 90% of the children of your age, especially 8 to 16 years, have already viewed porn. अश्लील इमेजेस एंड अश्लील फोटोज आपने ऑलरेडी देखी हुई होती है और इससे होता ये है ना कि यू माइट गेट इनटू एन एडिक्शन फॉर दैट. ये साइबर सेक्स एडिक्शन, इसकी लत लग सकती है आपको और एकदम बिहेवियर बहुत ही अजीब हो सकता है.
रिलेशनशिप्स में तकलीफें आ सकती है, और एक्चुअल सेक्स के बारे में यू माइट गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पिक्चर विच इज नॉट रियल। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक जो कोई भी रियल रिलेशन रहता है ना, उसमें 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज लव। सी वी ऑलवेज लव द पीपल अराउंड अस, अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, वो जो रिलेशंस है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्यार, अफेक्शन, लव, इट इज नेसेसरी, वो रहता ही है। सेकेंड इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम बड़ों का ही नहीं, छोटों का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? वी रिस्पेक्ट देयर आइडेंटिटी, हम उनके साथ ऐसी वैसी कुछ भी चीजें नहीं करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज परमिशन, दैट इज कंसेंट। हम किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो। वी ऑलवेज टेक देयर कंसेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग विद दैट। सो जो पोर्न वीडियोस या पोर्न साइट्स पे दिखाया जाता है, उन चीजों में ये चीजें नहीं होती है, love, respect, and consent. So they are not the right thing, and it is absolutely a crime to create such kind of videos. Second most important thing that can happen to you when you see a lot of porn sites is that there can be virus which can be installed in your system. तो porn sites जब आप access करते हो, कुछ viruses आपके system में आ सकते हैं and they can crash your systems. There are some viruses which can actually fix your cameras and it can take your images even when it is not on. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके डिवाइस के कैमराज ने आपके इमेजेस लेके दे हैव डायरेक्टली सेंट इट टू द पोर्न वेबसाइट्स। तो कल को अगर आपकी फोटोज पोर्न वेबसाइट्स पे आ गई तो डोंट बी सरप्राइज्ड। So you should not view these very often, or rather do not view it, because they are absolutely not legal. कई बार आपको ट्रेस किया जा सकता है, ऐसे वायरसेस होते हैं जो बग्स इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, एंड दे कैन ट्रेस यू यूजिंग ट्रेस योर लोकेशन. So be very alert and be very super alert when you are using the internet, and especially such kind of websites कि ऐसे कुछ भी गलत बातें हो सकती है. And this is exactly how your baby Janu Shonus look like. कोई आपको बता सकता है कि मैं 18 साल का हूँ और एक्चुअली वो एकदम 80 साल के दादाजी हो सकते हैं. ये लड़का उस आंटी को पूछ रहा है कि आपके पास कैमरा है क्या, एंड शी इज सेइंग कि नो, आई डू नॉट हैव अ कैमरा, सॉरी, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू रिवील हर आइडेंटिटी. कुछ लोग आपको चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी गलत आपके साथ बिहेव करने के बाद में दे कैन ट्राई टू कीप यू शट योर माउथ, और कुछ भी आपको ना बोले ऐसे कर सकते हैं. दे कैन ट्राई टू हैरेस यू, और आपको धमकाने की कोशिश कर सकते हैं ये बोल के कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपके पेरेंट्स को भी मार डालूंगा. लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी है, और अगर ऐसी कुछ भी चीजें हो रही है आपके साथ या किसी के भी साथ, तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है. एंड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर डिजिटल फुटप्रिंट्स. सो डिजिटल फुटप्रिंट्स इज व्हाट यू कीप ऑन डूइंग ऑन द इंटरनेट. आप जो भी चीजें करते हो ना, चाहे कोई कमेंट करते हो, चाहे पोस्ट डालते हो, see, that is going to remain there forever. Even after you die, it is going to be there. So this is your digital footprint, and it can actually break or make your career. तो आज ऐसे जमाना नहीं है कि आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ओनली विथ योर क्वालिफिकेशन एंड द वे यू गिव योर इंटरव्यू, इससे ही सिर्फ लोग आपको जज करेंगे. ऐसा नहीं है. दे विल ऑल्सो लुक एट वॉट इज देयर ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट. आप किस तरह की व्यक्ति हो ये सोशल मीडिया अकाउंट से फाइंड कर सकते हैं. एंड दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग. आप कहीं पर भी एडमिशन के लिए जाइए, या you might go to any interview, or even for matrimony these days people are also going to the social media accounts of the bride and groom, and they're checking about them, okay, what kind of a person they are. It's so easy to read a person using social media account. It takes only 7 minutes to read how you are. Can you believe it? सिर्फ 7 मिनट में सामने वाला आपको, आप कैसे हो, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, what are your likes, ये सब कुछ जान सकते हैं इंटरनेट पे से. Because we keep posting so many things on the internet, we are creating our digital footprints.
So today, if you go and if you search in Google, if you put your name in Google and search, you will see that there are so many things which come up. You know, आपके Facebook profile का नाम आएगा, or anything that you have done on the internet with your name, it will come up if you search your name in Google. We have never thought, right, of searching our own name in Google. These are your digital footprints. आपको social media accounts पे भी जाके search करना है. शायद आपके फेक अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, यू डोंट इवन नो अबाउट इट. सो टुडे आफ्टर दिस कॉल यू कैन गो एंड सी कि अगर आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे आर देयर एनी अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, किसी ने और क्रिएट किया है, कोई उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन उसको नाम और फोटोज दोनों के साथ सर्च कीजिए, बिकॉज नाम तो दो लोगों के सेम हो सकते हैं लेकिन फोटोज अलग होंगे. सो यू कैन डेफिनेटली सी दीज थिंग्स एंड देन अगर आपके कोई मल्टीपल अकाउंट्स है वहां पे, तो यू कैन रिक्वेस्ट ऑन दैट सोशल मीडिया साइट टू टेक डाउन दैट अकाउंट. आप वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो. So we talked about so many things about the crimes that are happening, online gaming, we talked about pornography, selfies, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात की. ये सब सुन के शायद आपको थोड़ा डर लग सकता है कि अभी मैं इन सब का क्या करूं, बिकॉज यू कैन स्टॉप यूजिंग द इंटरनेट, राइट. वो तो हमें यूज करना ही है, उसके बगैर तो अभी हम जी ही नहीं सकते हैं. तो हमें किस तरह से हम खुद को अब सेफ रखेंगे. तो हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बातें हैं जो हमें समझ लेनी है. वी नीड टू बिफ्रेंड टेक्नोलॉजी. हमें धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ जाए तो वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्व्स एंड आवर डिवाइसेस एज वेल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज थिंग्स आर. नाउ अगर आप कोई भी वेबसाइट्स देख रहे हो तो उसके जो URL है, नो दैट URL ऑफ द वेबसाइट, ऑब्जर्व इट केयरफुली. Try using websites which have HTTPS and not just HTTP. वो जो S होता है ना, that is a safety factor which is added to the safety thing which is added to the website. So make sure that you are using websites with HTTPS. I'm not saying that HTTP वाले जो websites रहते हैं वो सब dangerous है, but yes, some of them might be dangerous and it might actually put you in trouble. They are not safe. So जो भी है, just try using websites which have starting HTTPS and investigate the source. As I already told you कि कुछ भी आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ information आती है, मे बी WhatsApp पे कुछ news आ रही है, उसमें किसी का एकदम अच्छा सा फोटो डाला हुआ है किसी सेलिब्रिटी का, and there is some very engaging news और आपको वो पढ़नी है, बट हमेशा देखिए कि वो किस सोर्स से आई है, बिकॉज दैट कैन मे बी जस्ट अ स्पैम मैसेज which will actually install some viruses on your phone. तो ऐसे कोई अननोन सोर्सेस से रैंडम आने वाली न्यूज उसको प्लीज एक्सेस मत कीजिए. एंड मेक श्योर दैट यू आल्सो चेक द फॉर्मेटिंग ऑफ द वेबसाइट्स. तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जो वेबसाइट्स इफ देयर आर सम मैलवेयर लाइक गलत वेबसाइट्स रहती है तो उसमें फॉर्मेटिंग भी गलत होता है. अगर आपको लगे कि लोगो ठीक नहीं लग रहा है या और कुछ है तो डोंट यूज दोस वेबसाइट्स. आपको अगर डाउट आए तो सो ऑलवेज बी श्योर. अभी आपको व्हाटएवर लाइक हाउ विल यू नो इफ योर मोबाइल इज इन्फेक्टेड. अगर आपके मोबाइल में कुछ वायरस आ गया है, हाउ विल यू नो दैट. सो देयर इज अ वे यू कैन फाइंड आउट. अगर आपके मोबाइल का स्क्रीन अचानक से चेंज होने लगता है, लाइक मे बी इट इज चेंजिंग कलर्स, और या तो उसका स्पीड चेंज हो गया है, अलग अलग एप्लीकेशंस खुद ही ओपन होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, या यू नो समटाइम्स देयर आर न्यू पॉपअप्स ऑन योर स्क्रीन, कुछ अचानक से डाउनलोड हो रहा है विदाउट यू आस्किंग फॉर दैट डाउनलोड, कुछ अपलोड हो रहा है, तो ऐसे कुछ भी अननोन यानी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर आपको दिखाई दे तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके मोबाइल में शायद कुछ वायरस हो गया होगा, चला गया होगा, एंड यू नीड टू गो एंड शो इट टू समवन हु कैन चेंज, हु कैन रिपेयर इट. तो इस वक्त यू डोंट हैव टू टेक योर मोबाइल्स टू द रोड साइड शॉप्स, बिकॉज बहुत से बार इन्हीं जगहों में से और वायरसेस डाले जा सकते हैं या आपके मोबाइल से डेटा चोरी हो सकता है. Always make sure that you take your mobile phones to a authentic service center, क्योंकि वहां पे शायद आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, but your data will remain safe. Every mobile company has its authentic service center which you can
obviously you can go there and show your mobiles and your data will remain safe. आप password set करते हो, so make sure that you're using you're setting difficult passwords. अगर suppose my name is Manisha and if I put my password as Manisha, obviously कोई भी पहचान सकता है, right? Set difficult passwords. Do not share with others. बहुत से बार ऐसे होता है कि हमें लगता है हमें याद नहीं रहेगा and let me just share it with someone, write it somewhere, but this can actually put you in trouble. What if the other person shares it with someone else and that person takes advantage of you? So don't share your passwords, don't write it anywhere. Do not use firewalls and use antiviruses which are updated. Softwares भी आपके updated होनी चाहिए. कई बार ऐसे होता है कि आपके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में जो एंटीवायरस रहते हैं, दैट इज वैलिड व्हेन यू फॉर अ ईयर और 2 जब आप खरीदते हो तब, बट उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाते हैं एंड देन वी डोंट बॉदर टू अपडेट इट. So make sure that you are always using an updated version of antivirus. We are going to talk about multi-factor authentications in the next slide. बहुत सारे जगहों पे फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता है और हमें भी लगता है कि वाओ ये तो फ्री है, चलो बहुत से चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं, फटाफट यूज़ कर लेंगे, मैक्सिमम यूज़ करके लेना चाहिए. तो ऐसे नहीं है, कुछ भी मैंने आपको कहा ना, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है. तो if someone is giving you free Wi-Fi, probably ऐसे हो सकता है शायद कि वो बैकग्राउंड में आपसे कुछ चोरी हो जाए, आपका कुछ डेटा चोरी हो सके. सो ऑलवेज अगर आपको फ्री वाईफाई यूज भी करना है ना, तो जस्ट यूज इट फॉर नॉर्मल सर्फिंग. उस पे से कुछ भी पर्सनल डेटा डाउनलोड या अपलोड मत कीजिए एंड डोंट यूज इट फॉर एनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. So all these things, if you keep in mind, you can be able to, have a safe surfing experience. Two-factor authentications available है सारे social media platforms पे. Two-factor authentication means you set a two-level password for your accounts. So for example, if you go to WhatsApp, आपको अगर settings में जाओगे, तो you can see that there is a two-step verification which is available. It will ask you to set a password. It's a numeric password that you need to set. और जब आप वो सेट करते हो तो every few days it will ask you back that password. फिर आपको वो एंटर करना पड़ता है and without that you cannot access your account. तो इसका फायदा यही है कि अगर आपका फोन चोरी होता है, किसी के हाथ लग जाता है, तो आप उसको तो आपका पासवर्ड पता नहीं होगा, राइट? सो ही वोंट बी एबल टू एक्सेस योर व्हाट्सएप. So सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑथेंटिकेशंस अवेलेबल है. You can go and set them. If you don't know how to do that, you can go to YouTube and search videos related to it. अगर आप YouTube पे टाइप करोगे how to set two-factor authentication for say Instagram, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप ये सेटिंग्स अपने फोन में कर सकते हो. हमेशा टैग्स रिव्यू कीजिए. आई टोल्ड यू अबाउट हैशटैग्स, कि आप किसी को भी टैग कर रहे हैं, कुछ भी चीजें टैग कर रहे हैं, तो उसको उसमें क्या सेटिंग ऑफ व्हाट्सएप फेस, जहाँ पे इफ यू लॉक योर प्रोफाइल ओनली योर फ्रेंड्स एंड कैन सी योर पोस्ट्स एंड फोटोज. Not everyone, not all the public will be able to see. So you make use of. Can you also make use of the reporting या blocking options on all these social media apps. फिर ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन सेट कर सकते हो. इवन ऑन फेसबुक देयर इज एन ऑप्शन वेयरइन यू कैन सेट लॉगिन नोटिफिकेशंस. तो आपका अगर अकाउंट कहीं और से एक्सेस हो रहा है, तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ इट, मे बी ईमेल पे या मैसेज पे. And unless and until you provide the code, then that account won't be able to access from any other place. तो इस तरह से we can safeguard जहाँ पे every time you log into Instagram it will send you a code. And अगर कोई और जगह से आपका लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो they will not be able to do it. So I would urge you all to go to these social media apps and try to understand these mechanisms and set these authentications. अगर आपको लगता है कि आपके फेक अकाउंट्स किसी ने बनाए हुए हैं, it's not what you have made, so you can request it.
request that social media site to take down those accounts. There is a some waiting period के उतने time तक वो active रहेगा, and then that account is taken down. So that we can always do. स्नैपचैट पे भी बहुत से बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं स्नैपचैट पे, just because it gets vanished in some time. So आपको लगता है ऐसे, लेकिन वो वैसे है नहीं. It stays on the server. वो आपकी visibility में से चला जाता है, लेकिन सर्वर पे रहता है. So and even if you're putting some story say on Snapchat, so make sure कि आप वो सिर्फ आपके friends को, आपके family को available करें. Do not make it public. पूरे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या क्या चीज कर रहे हो. You can actually do many things using that. आपको कुछ भी अगर doubt है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, and you can get answers to all your questions over there. Then there are various applications accesses that you are giving. आपके जो भी apps है ना phone में, आप जाके देखिए उनके settings में, they have access to your contacts, your location, आपके SMS, email, सबका contact access रहता है उन्हें, which is really not required. लेकिन हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें इतनी जल्दी रहती है कि फटाफट ऐप डाउनलोड करना है. वो यूजर एग्रीमेंट करके आता है ना, कौन पढ़ता है वो? कोई नहीं पढ़ता. फटाक से आई एग्री करके क्लिक कर देंगे और डाउनलोड कर लेते हैं. लेकिन आप ये करते वक्त उस ऐप को ऐसी कुछ एक्सेस दे देते हो जो लोकेशन का एक्सेस चाहिए. So it is fair enough, right? Otherwise it will not come to pick you up. But if a banking application needs access to your camera, it is absolutely not required. Banking application को आपके कैमरा का एक्सेस क्यों चाहिए? तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपने क्या एक्सेसेस दिए हुए हैं, एंड इफ इट इज नॉट रेलेवेंट, प्लीज डिसेबल दोज एक्सेसेस. यू कैन टेक इट अप एज अ होमवर्क. आज आप जाके ये सब चीजें कीजिए. These are some more cases of online harassment. तो ट्रोलिंग की बात हमने की, talked about commenting or remarks on someone's profile. Then forceful sexual conversation. बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे होता है कि अलग अलग नंबर से उन्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, एंड वंस दे आर एडेड, उस ग्रुप में कुछ भी ऐसी कंटेंट शेयर होती है जो अश्लील है, अश्लील वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट, बहुत कुछ ऐसे चलते रहता है. इवन इफ दे वांट टू एग्जिट, दे वोंट बी एबल टू डू इट. अगर उन्होंने एग्जिट कर भी लिया तो भी कोई और नंबर से उन्हें उसमें ऐड कर देता है. तो इस तरह की चीजें आप उसका एविडेंस लेके रख सकते हो, एंड यू कैन रिपोर्ट, यू कैन ब्लॉक दोज पीपल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द पुलिस स्टेशन, and definitely you can get help for it. Sending objectionable images. कई बार ऐसे होता है कि आपको कोई अश्लील फोटोज भेजते हैं, तो इस तरह से किसी को भी अश्लील फोटोज भेजना, वीडियोस भेजना या कोई भी ऐसी चीजें शेयर करना is absolutely a cyber crime. And let me tell you specifically in terms of child pornography, it is a very, very serious crime. तो आपको अगर ऐसे पता चले कि कोई बच्चों के अश्लील फोटोज या वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उन्हें रोकना है, एंड यू हैव टू रिपोर्ट दीज केसेस. अगर आपको पता चले कि कोई बच्चों के अश्लील फोटोज बना रहा है या उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, तो प्लीज आप जाके उसका रिपोर्टिंग कीजिए पुलिस के पास. बिकॉज आपको अंडर पॉक्सो एक्ट, अगर आपको पता है कि कोई बच्चों का ऐसे कंटेंट बना रहा है, and if you do not report it, so you are also considered as an equal criminal in it. और आपके अगेंस्ट भी केस लॉन्च होगा because आपने देखा and you didn't do anything about it. So under POCSO Act, you are also a criminal in that act. So this is a very serious cyber crime, child pornography. And अभी हम जो बातें कर रहे हैं about girls, are girls really safe? So we all know the answer to this, right? There are so many things which are happening and we feel that we are not safe. But for all of this, what we can do is we need to learn the security and safety features. क्योंकि ये सारी चीजें आप सीखोगे, थोड़ी थोड़ी बंद करोगे, तब आप और सेफ होते जाओगे.
I'm very sure out of the 200 plus girls who are attending this session, more than I think 60-70% लोगों से ज्यादा लड़कियां ऐसे होगी जिनके फोन में सिंपल पिन लॉक भी नहीं है. तो इट इज सच अ सिंपल बट सच अ ग्रेट फीचर ऑफ योर फोन कि पिन लॉक कर देते हो तो पिन आपको ही पता है. बट वो भी फीचर हम नहीं करते हैं बिकॉज वी फील सो बोर्ड. हमें लगता है कि कौन हमारा एडवांटेज कहीं पे छोड़ देते हो. Right, to everything that. So these simple things are there which we can definitely do. Do not connect with strangers. Do not share your personal information. कोई आपसे आपकी कुछ भी फोटोज मांगे, अश्लील हो या नॉर्मल भी फोटोज हो, उन्हें भी शेयर मत कीजिए. और हमेशा देखिए कि किसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो. ऑलवेज एक्सेप्ट नोन पीपल एज योर फ्रेंड्स. अननोन लोगों को फ्रेंड्स करके एक्सेप्ट मत कीजिए. बैंकिंग पोर्टल्स यूज करते हो तभी आप सावधानी बरतिए. किसी को भी अपने कोई भी पासवर्ड्स, पिन नंबर्स, ओटीपीज मत शेयर कीजिए. So all in all, you have to be very alert and very smart when you are online. So I told you about all the crimes, and I also told you that there is an IT Act. So and they are defined that any type of crime that we talked about, maybe creating a fake profile or hacking, stealing, stalking, जो भी crimes हमने बात की, every crime has a punishment associated with it. It can be for the crime from right up to like from 3 to 10 years of 7 years of imprisonment and up to 10 lakh rupees of fine. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत से बार आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है. आपको तो सजा होगी ही, लेकिन पेरेंट्स को भी पेरेंट्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी. अगेन एज आई सेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ वेरी सीरियस क्राइम. उसके लिए पनिशमेंट इज अप टू 7 years of imprisonment and up to 10 lakh rupees of fine. साइबर टेररिज्म इज अनदर वेरी बिग क्राइम. उसमें तो फाइन भी नहीं भर सकते हैं, डायरेक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है. सो इट इज कंसिडर्ड एज सच अ बिग क्राइम. सो वी हैव टू बी अलर्ट एज आई सेड. एंड अगर कुछ ऐसी चीजें होती है आपके साथ या मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ अगर होती है, तो आपको डरना नहीं है और इमीडिएटली वो कंटेंट डिलीट भी नहीं करना है. पहले आप उसके एविडेंसेस रखिए, स्क्रीन dealt with you when you approach the police stations. There are cyber cells which can handle such kind of requests, and they will be definitely able to help you. Now, as I told you that मैं आपको starting में ही मैंने कहा, someone's mic is on. Can you please mute it? So मैंने आपको starting में ही कहा कि इंटरनेट बहुत अच्छा है. You do not have to stop using it. These are some examples which you can see on my screen. They are girls, it is a and they are having a lot of fan following. They are creating content only for entertainment. I'm sure कि आप में से बहुत लोग इन लोगों को follow भी करते होंगे. So these are examples that you can use internet in a better. कोई channels है, fan following है, so you can definitely tell us. We'll be happy to share those examples with other people. So अच्छी चीजों के लिए आप फेमस हो जाइए, बुरी चीजों के लिए फेमस होने से ज्यादा अच्छा तो वही है, right? You create some good content and you can become famous on the internet. All in all, I would just like to sum up the entire thing on this slide that we need to have a responsible online behavior. हमेशा सोचिए कि आप क्या कर रहे हो. Hurting? Are you threatening another person? जो भी आप कर रहे हो, have respect for the other person and be be mindful that there is a law which is in place.
कि आपने कुछ भी किया तो आपको पनिशमेंट हो सकती है और आपके पेरेंट्स को भी वो भुगतनी पड़ सकती है. So just as we try to become a responsible citizen, we should also try to be a responsible netizen. Netizen is a person who uses internet. So we should always have a responsible online behavior. This slide shares all our details. You can take a screenshot of this slide. As I said that we are also a referral organization. अगर आपको लगता है कि आप पुलिस के पास नहीं पहुंच सकते हो, if you feel that it is difficult to share things with anyone and you need any kind of support, you can definitely approach us. This is our website, our email ID, the RN helpline number is our number. We have also shared the number here for Mahila Ayog helpline and the cyber cells Mumbai and Thane numbers. सो आपको कुछ भी दिक्कत है, डेफिनेटली आपको आपकी आवाज उठानी है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट दीज पीपल. So now I'm at the end of my presentation. I'm going to stop sharing my screen, which is already stopped, I feel. Let me switch on my camera and 1 second. All right. So I'm sure आप में से बहुत लोगों को कुछ questions भी होंगे. So we will definitely open this round for the question answers now. Before that, I'm just pasting this link. This is a feedback link. आप सभी को ये भरनी है. Just to be sure, I'm just sending it to you now. I've pasted this in the chat. Now, किसी को भी question है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो. Hello, students. It was a wonderful session. So, those who have any questions, आप मराठी, हिंदी या इंग्लिश किसी भी तीनों में से एक लैंग्वेज में पूछ सकते हो. You just need to unmute yourself and ask the question. Hello. Yes, any questions? Hello. Yes. Yes, please tell your name. Ma'am, my name is Pooja Pratap Moite. I'm SY student. I want to ask you some website from government job. How to know this is a fake or real? So see, first of all, आपको ये जो information जो कोई दे रहा है about government jobs, you know कहाँ से आया है वो information, वो आप देखिए. अगर randomly कोई friend ने forward किया है, तो be very alert कि वो सच्ची में कहाँ से आया है. That is the first thing that you need to know. सेकेंड, जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो एज आई सेड यू नीड टू रीड दैट वेबसाइट प्रॉपरली. क्योंकि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे सपोजिंग कोई बैंकिंग वेबसाइट है, ओके से किसी बैंक की वेबसाइट है, तो यू ऑलरेडी नो कि बैंक का लोगो कैसे होता है, उसकी नॉर्मल वेबसाइट कैसी होती है, वो आप जाके थोड़ा सर्च कर सकते हो. तो इसी तरह से गवर्नमेंट का भी है ना, तो आपको देखना है कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे है, उसका यूआरएल में क्या लिखा हुआ है. आई टोल्ड यू कि https करके है. मे बी यू नो इफ इट इज सम स्पूफ वेबसाइट, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें गलत हो सकती है. सो ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ इट इज आस्किंग यू फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन or something which information you cannot share, so you be very very alert in those kind of things. Thank you, ma'am. And I think government के जो websites है ना, mostly उसमें gov.in, so that government gov is mostly written, so that URL also should be studied. Yes, any other questions? Students, please feel free to ask the questions.
Hello. Do we have any further questions? If you really have no questions now, may I have any questions? If at all anyone has any question, please unmute yourself and ask the questions. Please feel free. Okay, I think we should move ahead. Before we move on to the conclusion, I once again would like to tell you all that in the chat box, please go to the chat box and there is the feedback link already posted there. So you all are supposed to click on that link and fill up the feedback form. If you have not done so, please do it. And now I request Anita Madhu Madam to extend a vote of thanks. Thank you, Madam. Am I audible, ma'am? Yes, quite clear. Yeah, thank you, ma'am. A very good evening to one and all. As we are coming to end of this wonderful webinar on Cyber Sakhi, an online program on cyber safety. It's my privilege to propose vote of thanks to all those who have helped making this webinar a resounding success. On behalf of Women Development Cell, I extend a very hearty thanks to our chairman of Vidya Vikas Education Society, Shri P.M. Raut sir, for his moral support and encouragement. I thank Secretary of Vidya Vikas Education Society, Shri Vinay P. Raut sir, for his valuable support. I thank our principal, Dr. R.K. Patra sir, for his continuous motivation and guidance. I also thank our Vice Principal, Shri Shaji Matthew sir and Shri Mule sir, for the encouragement and support. I would like to express my heartfelt thanks to our eminent speaker, Mrs. Manisha Salvi Madam from Ahan Foundation and Responsible Netizen, for making this webinar a very meaningful, thought-provoking, realities as well as eye-opening session with your excellent slide presentation. Madam, I would like to add one more, that from now onward, I'm sure every girl will become a responsible netizen. I also thank Shri Kulkarni sir for all the technical arrangements who have been the backbone of this session. Last but not the least, I also thank all the participants present here for making this session a grand success. Thank you all. Thank you very much. Hi. Hello.